हेलो माय चैंपियन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाई विद पूजा। आई होप आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.4 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रैक्टिस सेट 2.3। एज यू नो वी हैड कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 2.3 इन द लास्ट वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 2.4 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. Let's start our video. Let's learn first question. Compare the given quadratic equations to the general form and write the values of A, B, C. First you have to compare the given equation with the standard form. Then you have to write the values of A, B, C. Now student, in the previous video I explained you that what is standard form of quadratic equation. Okay. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. This is the standard form of quadratic equation, or you can say this is a general form. Okay, these are the two names, general form and standard form. So we have to compare this equation with this standard form or general form. Okay, so first question is x square minus 7x plus 5 equals to 0. So write question as it is. Okay, now we have to comparing the given equation with ax square plus bx plus c equals to 0. We are comparing this equation with this. Okay, this is a general form. So from here you can see that this term is there, this term is also there, and this is constant is also there, equals to 0. So we don't have to rearrange it, it is already rearranged. So from here you can see nothing is written here before x square, right? So it means value of a is a equals to, so we get a equals to 1. B equals to, you have to consider minus sign also. Okay, so B equals to minus 7. Okay, and C equals to 5. So you can see here A equals to 1, B equals to minus 7 and C equals to 5. Okay, now let's solve second question. 2m square equals to 5m minus 5. Now if you can see here, this is not in a standard form, right? We have to rearrange it. So how to rearrange it? 2m square equals to 5m. First write question as it is, then we will rearrange. Okay, now look, now see here how to rearrange. 2m square, we are taking this term on the left side, so it will become negative and this will become positive, equals to 0. Correct? Now you can see this is in standard form. Okay, variable is m here. So what you will write? Comparing, here you will write therefore, because you have rearranged, right? Comparing the given equation with general form ax square plus bx plus c equals to 0. So we get a equals to, now see here before m square 2 is there, right? So a equals to 2, comma b equals to minus 5 and c equals to 5. Correct? Like this we have to solve. Let's do third question. Y square equals to 7y. Now so write question as it is. Okay, y square, this term we will take on left side, it becomes minus 7y. Now here you can see
constant is not there, so we will write plus 0. Okay, now what you will do, comparing the above equation with ax square plus bx plus c equals to 0, we get now from here you can see nothing is here before y square, so 1 is there, so a equals to 1, b equals to -7. Don't forget to put minus sign. C equals to 0. Okay. Let's solve our second question. Solve using formula. Now quadratic equation is given. You have to use formula and you have to find the two roots of quadratic equation. So if you remember, we had solved quadratic equation in two different methods in previous video. What are those methods? First is factorization, second was completing square method. Now third type is formula type. Using formula we will find the roots of quadratic equation. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में दो मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट फाइंड किया था. नाउ ये थर्ड मेथड होगा. ठीक है, सो यहाँ पर मेंशन किया गया है फॉर्मूला मेथड से आपको सॉल्व करना है. राइट, so write question as it is. X square plus 6x plus 5 equals to 0. Now what you have to do to find the values of a, b, c, we have to compare it with general form or standard form of quadratic equation. So comparing the equation with ax square plus bx plus c equals to 0. This is a general form of quadratic equation. We get a equals to 1. यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा. b equals to 6, c equals to 5. Correct. Now what you have to do, b square minus 4ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 इंटू 1, a मीन्स 1, c मीन्स 5. सो मैंने ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दिया है. अभी इसे सॉल्व करना है. 6 का स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 दैट इज 36 minus 4 into 5, 20. Now what is the answer? 16. Correct? You can see from here b square minus 4ac equals to 16. We can write here. Okay? लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व. इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली. नाउ अभी हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. करेक्ट. ये फॉर्मूला को हमको यूज़ करके रूट्स निकालने हैं. सो b की वैल्यू क्या है 6. सो -6 लिखेंगे. ये भूलना नहीं है. ठीक है, माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में है माइनस. प्लस माइनस, अभी हम इसकी वैल्यू निकाले हैं. ठीक है, 16 है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने वैल्यू निकाल रखा है ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए. राइट, सो हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे अंडर रूट 16 अपॉन 2 इंटू 2 into, you know already that square root will give two values, positive number and negative number. So इसीलिए फॉर्मूला में प्लस माइनस है. राइट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 अपॉन
2 into 1 is 2. Now we can write in two form, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, राइट. सो यहाँ पर x इक्वल्स टू -6 + 4/2 होगा, एक बार प्लस के साथ, और x इक्वल्स टू -6 - 4/2. ना इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. सिंस यहाँ पर साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है इसका मतलब क्या, वन साइन माइनस है, एक है प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस है. तो अगर साइन डिफरेंट है तो ऐसे केस में हमको सब्ट्रैक्शन करना है और बड़े नंबर की साइन पुट करनी है. सो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, 2 हो गया, और बड़े नंबर का साइन माइनस है. ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है. 2 1s are 2, 2 1s are 2. सो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू, अगर साइन सेम होगा तो साइन सेम मीन्स या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस, दोनों में एडिशन होता है. सो यहाँ पर -10 आ जाएगा, बड़े नंबर की साइन पुट करनी है. 2 के टेबल से कट करेंगे इसे. 2 1s are 2, 2 5s are 10, करेक्ट. और x इक्वल्स टू -5. Okay, so from here you can see two roots are -1 and -5. So in conclusion we will write -1 and -5 are the roots of given quadratic equation. ओके, ऐसे हमें सॉल्व करना है. यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने कंपेयर किया था जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c से कंपेयर किया था इक्वल्स टू 0 से. सो यहाँ पर हमको a b c की वैल्यू मिल गई, राइट. ना अभी यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. हमारा फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac/2a. तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना. हमने क्या किया, ये वाले जो ये मीन्स लेंदी है, राइट. तो हमको इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है. मेरा सजेशन यही है कि आप इसे पहले सॉल्व कर लो ताकि आपका ये कैलकुलेशन इजी हो जाए. अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप डाल सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो ये सही रहेगा. ठीक है. सो हमने ये इसका वैल्यूज़ फाइंड कर ली, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया 16, और यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने 16 डायरेक्ट लिख दिया. ठीक है. सो वैल्यूज पुट की हमने, यहाँ से हमको दिख रहा है कि हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक +4 के साथ, एक -4 के साथ. सो ऐसे लिखा, सिंप्लीफाई किया कैलकुलेशन के बाद, वी गॉट 2 वैल्यूज, 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x² - 3x - 2 = 0. अब आप बोलोगे ये क्या लिख रखा है मैंने, ये सेम है इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया. ठीक है. नाउ आपको करना क्या है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट a = यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1 है. ठीक है. b -3 है, क्या है, -3. यहाँ पर क्या है, -2. ठीक है. अब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे. b² मीन्स -3 का स्क्वायर -4 × a 1 × c दैट इज -2. ठीक है. माइनस वाले टर्म को हमको ब्रैकेट में लिख लेना है ताकि कंफ्यूजन ना हो. -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 × -3 दैट इज 9 माइनस. अब यहाँ पर देखो 4 2s are 8 हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8. ठीक है. 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस 8. ठीक है. 9 + 8 क्या हो जाता है, 17. ठीक है. b² - 4ac = 17. सो यहाँ पर हम पुट करेंगे x = माइनस ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला में है, और यहाँ पर -3b की वैल्यू है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे ± √17. क्यों 17, क्योंकि b² - 4ac का वैल्यू 17 है. ठीक है. डायरेक्टली लिख दिया हमने. नाउ 2 ×
a, that is 1. करेक्ट. नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए कुछ भी नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, मीन्स प्लस ही है. प्लस माइनस अंडर रूट 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर रूट नहीं है, राइट. ठीक है, सो 2 1 था 2. दो तरीके से हम लिख सकते हैं इसे. कैसे? x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और वी कैन राइट x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2. करेक्ट. सो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें रूट्स मिल गया है. ठीक है, इससे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. और 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और एंड 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन. 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0. राइट क्वेश्चन एज इट इज. कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद दिस जनरल फॉर्म वी गेट. यहाँ पर देख सकते हो कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -7. ठीक है, माइनस को कंसिडर करना है. 3 2 -7. ना आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. सो b इज 2 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a दैट इज 3 इंटू c. करेक्ट, ये ब्रैकेट में लिखेंगे. नाउ 2 2s are 4. ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस करेंगे. 4 3s are 12, 12 7s are 84, that is 88. So b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 88. ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखा है. अब इसमें सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज. x इक्वल्स टू माइनस b इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 3. इस बार a हमारा 3 है. ठीक है, ध्यान दो. अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, किसी का 88 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता. यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, पिछले वाला सम में 17 प्राइम नंबर था, इसीलिए हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व नहीं किया था. बट ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे और वहाँ से फैक्टर्स निकालेंगे. सी 88 प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से. 2 4 जा 8. ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11. ठीक है, नाउ आप यहाँ से देख सकते हो कि एक पेयर है 2 का. जो पेयर्ड है आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, -2 प्लस -2 बाहर रखना है, उसको बाहर रखना है. जो अनपेयर्ड है मीन्स उसका पेयरिंग नहीं है. ठीक है, सो इसको अंदर ही रखेंगे. 2 11 जा 22 6. ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है. नाउ x इक्वल्स टू दो तरीके से लिखेंगे, -2 प्लस 2 अंडर रूट 22/6, और वी कैन राइट x इक्वल्स टू -2 माइनस 2 अंडर रूट 22/6. ठीक है, नाउ यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे कि 2 कॉमन है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. सो 2 को बाहर लिखेंगे. x इक्वल्स टू 2 बाहर रखेंगे तो यहाँ पर माइनस आएंगे, और यहाँ पर इसके साथ 1 लिख देंगे. प्लस वैसे ही रहेगा, 2 बाहर निकल गया, राइट, तो ये बचेगा खाली (6). करेक्ट, और x इक्वल्स टू यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे फिर से.
अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में, -1 माइनस √22। अब आप बोलोगे यहाँ पर माइनस भी कॉमन था, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने 2 खाली लिया है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया है। और यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। कैसे? 2 इंटू -1 दैट इज -2, 2 इंटू √22 प्लस, ठीक है, 2 √22, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -√22 -2 √22, ठीक है। अभी हम इसे 2 से कट करेंगे, 2 1 सा 2 3 सा 2 1 सा 2 3 सा। x इक्वल्स टू -1 प्लस √22/3 और x इक्वल्स टू -1 माइनस √22/3। सो यहाँ से हमको देख सकते हो यहाँ पर रूट्स मिल गई है, राइट। ये और हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, 5m² minus 4m minus 2 equals to 0. Write question as it is. Comparing the equation with ax² plus bx plus c equals to 0, we get a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -2। ना इसकी वैल्यू क्या होगी, b का वैल्यू है -4 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू 5, a इज 5, c इज -2, ठीक है। -4 इंटू -4 16, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, करेक्ट। 56 आंसर आ गया है। सो b² -4ac इक्वल्स टू 56। फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज, x इक्वल्स टू माइनस, क्या लिखेंगे, ऑलरेडी ऑलरेडी माइनस साइन है फॉर्मूला में और ये -4 इसका वैल्यू है b का, प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिखेंगे 56 अपॉन 2 इंटू 5, ठीक है ना। अभी ये 56 प्राइम नंबर नहीं है, सो हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। सो 56, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, हम किसका रूट निकाल लेते हैं 56 का, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, करेक्ट। जो पेयर में है उसे हम बाहर निकालेंगे और जो अंदर है उसे ऐसे लिखेंगे 2, ये हो गया 14, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या है, ये x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 √14 अपॉन 10, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है ना। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन साइन रूल नहीं पता, मीन्स माइनस माइनस प्लस कब होगा, माइनस प्लस माइनस कब होगा, तो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन साइन रूल्स कहते हैं इसे। नाउ इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 √14 अपॉन 10 और x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 √14 अपॉन 10। नाउ इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है इसीलिए 2 अंदर रखा, प्लस 2 तो ऑलरेडी बाहर है, √14 अपॉन 10
करेक्ट। नाउ ये 2 1 जा 2 5 जा, क्या वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 14/5, और फिर से यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 2 2 जा 4, माइनस अंदर रखेंगे 14/10, 2 1 जा 2 5 जा, x इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट 14/5, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर आप यहाँ से लिख सकते हो, आंसर में क्या लिखना है आपको, देयरफॉर 2 प्लस अंडर रूट 14/5 and 2 minus under root 14/5 are the roots of the given quadratic equation। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। राइट क्वेश्चन एज इट इज। नाउ यू कैन सी ये फ्रैक्शन फॉर्म में, सो इसे हमें होल में लाना है। मीन्स अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 है ना डिनोमिनेटर में। सो हर एक टर्म को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स 3 into y square plus 1/3 y into 3 then equals to 2 into 3, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लिखना भी है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, सबको लिखना है, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 3, 4 वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1y या y बोल सकते हैं, इक्वल्स टू 6, ठीक है। नाउ आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे अरेंज करके। 3y स्क्वायर प्लस 1y, ये यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। नाउ हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, किससे करेंगे, लास्ट सम में मैंने गलती कर दिया था कि यहाँ पर m था, तो आपको यहाँ पर भी मेंशन करना है जनरल फॉर्म में x की जगह पे m लिखना था वहाँ पर, प्लीज़ उसे करेक्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर अभी y है, तो अभी मैं यहाँ पर y लिख रही हूँ, a y² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म वैसे ही है, जस्ट वेरिएबल चेंज होगा, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। और मैंने बाद में फॉर्मूला में यहाँ पर क्या लिखा था, x लिखा था, आप m लिखना, ठीक है। यहाँ पर y आएगा, करेक्ट। नाउ वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -6, ठीक है। नाउ हमें b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, ठीक है। b इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, दैट इज 3 इंटू -6, c का वैल्यू -6 है। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72 इक्वल्स टू 73। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 73। नाउ फॉर्मूला लिखेंगे किसके टर्म में, ये वेरिएबल y के वेरिएबल में, -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट। नाउ इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे माइनस बी, बी इज 1, ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 2 इंटू ए, दैट इज 3, ठीक है। y इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73/6, ठीक है। ना आप देख सकते हो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो उसको ऐसे रहने देना है, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 73/6 और y इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 73/6, ठीक है। सो देयरफॉर लिख सकते हैं -1 प्लस दिस एंड -1 माइनस दिस 6 are the roots of the given quadratic equation, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। क्या किया, यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी दिया होगा तो आपको डिनोमिनेटर में जो है उससे मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म को, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, सो 3y², ये कैंसिल हो गया, 1y बचा इक्वल्स टू 6। ये यहाँ पर हम लेकर आए -6, क्यों लेकर आए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या किया है, y के टर्म में लिखा है, ठीक है। ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ a b c की वैल्यू है, फॉर्मूला में पुट करना है और वैल्यूज निकालना है। लेट्स सॉल्व 6th क्वेश्चन। 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। राइट क्वेश्चन एज इट इज। Okay, since the given equation is quadratic equation is in standard form, so we will comparing the above equation with ax² plus bx plus c equals to 0, we get a equals to 5, a equals to 5, b equals to 13, c equals to 8, correct. Now what you will find, b square minus 4ac, b square minus 4ac equals to, b value is 13 square minus 4 into 5, a, c is 8, correct. 13 square, 13 into 13, 169 minus 4 5s are 20, 28s are 160. Therefore 9. Therefore b square minus 4ac equals to 9. Okay. Now what you will do, write the formula. What is the formula? X equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. X equals to, b is 13 minus 13 plus minus under root 9. Okay, b square minus 4ac
वैल्यू इज 9 अपॉन 2 into 5. We know that square root of 9 is 3. So we will write 13 plus minus 3 on 10. Correct? Now दो तरीके से लिख सकते हैं इसे, -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इक्वल्स टू -13 माइनस 3 अपॉन 10. ठीक है, x इक्वल्स टू -13 प्लस 3 दैट इज -10 अपॉन 10 और x इक्वल्स टू -16 अपॉन 10. नाउ यहाँ पर डिफरेंट साइन था तो सब्ट्रैक्शन किया, बड़े नंबर का साइन माइनस लिखा. यहाँ पर दोनों साइन क्या था, सेम था, मीन्स माइनस है, तो एडिशन किया और बड़े नंबर का साइन लिख दिया. नाउ इसे हम 10 के टेबल से 10 1 सा x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 5 सा 2 8 सा -8 अपॉन 5. So therefore we can say -1 and -8 upon 5 are the roots of given quadratic equation. Okay. Now let's start third question. With the help of the flowchart given below, solve the equation x square plus 2 under root 3x plus 3 equals to 0 using the formula. कुछ नहीं करना है, सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करना है आपको, बस वो फ्लो चार्ट आपको दे रखा है उसकी हेल्प से आपको करना है. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है फ्लो चार्ट में. कंपेयर इक्वेशंस, ये इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है. एंड किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करने के बाद आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. फिर सेकेंड बॉक्स में आपको दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac, जैसे हम करते थे वही स्टेप्स लिखा है. राइट, सो थर्ड स्टेप क्या है, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते थे, वैसे लिखना है. फिर सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज ऑफ a b c, फिर हमको 2 रूट्स मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. कंपेयरिंग द above equation with किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू 1, कुछ नहीं है यहाँ पर, मीन्स 1 है. b इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3, c इक्वल्स टू 3. ओके, नाउ यहाँ पर आपको b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है. तो फ्लो चार्ट में आप देखोगे तो सेकेंड बॉक्स में यही बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac. सो सेकेंड स्टेप करेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू b का वैल्यू है 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a क्या है 1 है, c क्या है 3 है. सो यहाँ पर इसका स्क्वायर कैसे करना है, देखिए 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है. राइट, सो 2 इंटू 2 कर रहे हैं 2 बार, इंटू रूट 3 इंटू रूट 3. ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. तो आंसर यहाँ 12 आ रहा है. ठीक है, ये यहाँ पर सॉल्व कर दिया, -12 मिल जाएगा. 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0. देख सकते हो यहाँ पर b² माइनस 4ac हमारा कितना है 0 है. ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है.
नाउ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। थर्ड आपके बॉक्स में क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखना है और फिर पुट करनी है वैल्यूज। सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर पुट कर देती हूँ। b क्या है, 0 है, सॉरी b है 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस इसका वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2 इंटू 1, करेक्ट, 2 इंटू 1। सो x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 0, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, 2, करेक्ट। नाउ दो तरीके से लिख सकते हैं इसे, 2 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 2। यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा है, माइनस साइन नहीं बोलना है आपको, ठीक है। और हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, यहाँ पर माइनस 0 अपॉन 2, करेक्ट। नाउ यहाँ से देखोगे ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो आप देख रहे हो दोनों में माइनस रूट 3 मिल रहा है, ठीक है। 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा। सो देयरफॉर माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। नाउ अब आपकी बारी है, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.5 के। तब तक के लिए बाय। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि ये सब नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकें।